Good morning, everybody. Today, welcome to this workshop. We have changed the format. Instead of having a live workshop, we have decided to have a recording of this workshop so that you can each one on the group can sort of take their own time, to go through the workshop, to listen to the workshop. We would be putting this recording on YouTube like the previous workshop, and we would then circulate this on the group. Also, you are free to circulate this among your friends and persons who would be interested in this type of a workshop. So without going too much into the introduction, I will start with the workshop. Basically, just to give you an idea as to, for I suppose there would be some people, कोई ऐसा लोग रहेगा जो जनता एक्सप्रेस के बारे में मालूम नहीं है. तो जनता एक्सप्रेस इन शॉर्ट आई विल टेल यू नाउ, एंड देन उसका बाद में मे बी आफ्टर वी फिनिश द कंटेंट ऑफ दिस वर्कशॉप आई विल एक्सप्लेन टू जनता एक्सप्रेस इन लिटिल more detail. But basically, Janata Express is a group of organizations across India who have come together and who basically where we discuss and help each other with fundraising. Okay? So the main aim of Janata Express is to develop the fundraising capacity of organizations, especially micro and small organizations whose budgets are less than 10 crore and specifically whose budgets are less than 1 crore. ठीक है, to understand, to build within the organization itself a capacity to raise funds so that they don't come back to Janata Express after 5 years and says कि भाई जो आपने मेरे को link, the person who had referred me to or the funder who had referred me to, they have stopped funding or they are this is over. Taking that forward, we will start this workshop. Hope it goes. ठीक है. So basically, we had, as all of you all know, we had done a poll some time ago to understand from the group as to what we interested in, you all would be interested in. And from that poll, we had gotten results. One, of course, the most prominent being that, a list of 100 funding organizations. However, last week we did cover that. Another popular topic was to create a five-year fundraising strategy for organization. And so what we thought of in Janata is maybe we can 5-year strategy we believe is the fundamental for any organization. Any organization has to have a 5-year strategy in place to raise funds, without which it would not be possible for them to sustain them. Okay? So what we are going to do is that this whole series of workshops what we are going to have, we are going to टेक द बेस. हम लोग एक बेस लेंगे, एक फाउंडेशन लेंगे 5-year फंड-रेजिंग स्ट्रैटेजी का हिसाब से, रणनीति का हिसाब से, और उसका ऊपर हम लोग अलग अलग टॉपिक का ऊपर बात करेंगे. लास्ट टाइम हम लोग ने क्या बात किया था कि हम लोग ने बोला था कि 100 फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन को कैसा हम लोग लिस्ट कर सकते हैं. 100 फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को, जो हमारे एनजीओ को फंड देना वाला है. ठीक है. So this time we are going to talk about 1000 individual donors. ठीक है, इंडिविजुअल डोनर्स यानी कि जो व्यक्तित्व रूप से डोनेट करते हैं हमारे संस्था को, उन लोग को हम लोग कैसा, how are we going to approach them, how are we going to list them. ठीक है, so we will speak about individual donors and we will speak about the fundraising strategy. ठीक है, to start off with, in terms of the fundraising strategy, I want to tell you that you have to have, as an organization, you have to have a fundraising strategy in mind, in the sense that for the next 5 years you must have a plan. आपका पास एक प्लान होना चाहिए कि आप कितना फंड रेज करना वाला है और आपका टारगेट क्या है. ठीक है, having said that, at least for the current year and the year after that, at least for the current year you must have a very detailed plan और एक टारगेट होना चाहिए कि ये साल मुझे इतना फंड रेज करना है. And always remember that without this target it's not possible to reach anywhere. Okay, so you need to keep a target. Also, your target should be at least 10% more than your present budget. Inflation जो है is around 4 to 7%, so therefore at least your target should be 10% more than your present budget. ठीक है. So important thing is that have a target for this year, have a target for 5 years, create a fundraising strategy जिसमें आप डिस्कस करेंगे, जिसमें आप थिंक करेंगे कि भाई मेरे को कौन सा डोनर को अप्रोच करना है, कौन सा टाइप ऑफ डोनर्स को अप्रोच करना है, क्या मेरे को CSR अप्रोच करना है, क्या मेरे को FCRA अप्रोच करना है,
क्या मेरे को इंडिविजुअल डोनर अप्रोच करना है, क्या मेरे को फैमिली डोनर्स अप्रोच करना है, क्या मेरे को फाउंडेशन अप्रोच करना है, और कौन सा उस एक बार हम लोग को टाइप मिल गया तो उसका बाद हमेशा ऐसा नहीं होता है कि भाई मैं एक ही टाइप ऑफ डोनर्स को अप्रोच करूँगा। बात होता है कि भाई वी अप्रोच मल्टीपल टाइप ऑफ डोनर्स, बट उसका प्रपोर्शन क्या रहेगा। तो बोल सकते हैं कि ठीक है, मैं 50% जो मेरा फंडिंग है, मेरा फंड रिक्वायरमेंट्स है, मैं 50% इंडिविजुअल डोनर से लूँगा, 50% में CSR से लूँगा। या ऐसा भी बोल सकते हैं कि मैं 25% इंडिविजुअल डोनर से लूँगा, 25% CSR से लूँगा, 25% में फाउंडेशन से लूँगा, 25% में FCRA से लूँगा। जो भी आपका ब्रेकअप है ये आपका 5 ईयर फंड रेजिंग स्ट्रैटेजी में आना चाहिए। ठीक है, ये दूसरा एक बात है कि 5 ईयर फंड रेजिंग स्ट्रैटेजी में ये भी आना चाहिए कि आप कैसा फंड रेज करना वाला है। आप कुछ कैंपेन चलाना वाला है, स्पॉन्सर अ चाइल्ड जैसा कैंपेन, या स्पॉन्सर अ स्कूल जैसा कैंपेन, या स्पॉन्सर अ प्रोग्राम जैसा कैंपेन, या आप दूसरा किसी और तरीका से फंड रेज करना वाला है, या एक प्रपोजल लेके, एक प्रोजेक्ट प्रपोजल लेके। ठीक है, ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू थिंक अबाउट ए फंड रेजिंग स्ट्रैटेजी। एनीवे, टुडे हम लोग क्या टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस is about creating a list of 1000 donors, 1000 individual donors। ठीक है, अभी बहुत सी बार हम लोग का मन में ये आता है कि इंडिविजुअल डोनर्स का मतलब कुछ फ़ायदा नहीं है। इंडिविजुअल डोनर्स हम लोग को शायद 500 रुपया, 1000 रुपया, 10,000 रुपया देते हैं, वो कितना हम लोग को इंडिविजुअल डोनर्स रखना चाहिए। पर मुझे ये बोलना है कि जो इंडिविजुअल डोनर्स है, यानी कि जो व्यक्तित्व डोनर्स है, यानी कि डोनर्स हु आर लाइक योर फैमिली, फ्रेंड्स एक्सेट्रा, वेल विशर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है, ये आपका एकदम बेस डोनर रहते हैं, ये आपका एकदम फाउंडेशन डोनर रहते हैं। क्यों मैं ये बोल रहा हूँ, 2-3 चीज़ है इसके लिए। ठीक है, एक ये बात है कि why is it a foundation donors, why individual donors are a foundation donors of any organization? One is that they are the persons who really care about you, they are the persons who really care about your organization, and they are the persons who really care about the cause you are working on, या इशू पे, जो इशू पे काम कर रहे हैं। ये डोनर को सही में दिल से उन लोग को आपका संस्था का बारे में, आपका जो इशू, आप जो इशू का ऊपर या प्रॉब्लम का ऊपर काम कर रहे हैं उसका बारे में, और आप जो काम करें उसमें दिलचस्पी है। ठीक है, दे इंटरेस्टेड इन दैट, दे फील फॉर दैट, एंड दैट इज वाई दे विल ऑलवेज बी विथ यू। ठीक है, अनलेस यू पुश देम अवे, or unless you do something which is not illegal or something where you don't want to associate yourself. ठीक है, so individual donors are donors like your family which is going to stay with you through thick and thin। मतलब जो भी होता है आपका संस्था में, इंडिविजुअल डोनर्स आपका साथ रहेंगे, नंबर 1। नंबर 2, क्यों इंडिविजुअल डोनर्स है कि इंडिविजुअल डोनर्स का जो डोनेशन है ना, आप उससे आपका ऑफिस का मरम्मत कर सकते हैं, आपका ऑफिस का टेबल चेयर खरीद सकते हैं, आपका बाकी को जो, जैसा कि आपको कुछ सेलिब्रेट करना है, जैसे दिवाली सेलिब्रेट करना है, बच्चे लोग को कुछ गिफ्ट देना है, तो दीज ऑल मनीज कैन कम फ्रॉम इंडिविजुअल डोनर्स। इसका जो फंडिंग रहता है बहुत फ्लेक्सिबल रहता है। आप इंडिविजुअल डोनर्स को कन्विंस कर सकते हैं, सर मुझे ना अपना काम के लिए, बाकी के लिए तो मेरे को पैसा मिल रहा है, पर ये चीज़ के लिए मेरे को पैसा नहीं मिल रहा है, तो कैन यू डोनेट फॉर दैट। ठीक है, या मेरे को एक कभी कभी इंडिविजुअल डोनर्स जैसा है कि भाई उन लोग आपको पैसा नहीं देंगे, दे विल गिव यू समथिंग इन काइंड। जैसा कि आके उन लोग आपको बोल देंगे कि भाई यू नो आई हैव गॉट दिस टेबल, ठीक है, डू यू वांट द टेबल। ठीक है, या आप बोलेंगे, या उन लोग बोलेंगे देख मेरा घर पे कंप्यूटर है, या मेरा ऑफिस में 2-3 कंप्यूटर है, क्या आपको चाहिए वो कंप्यूटर। तो ये सब चीज़ है ना, समटाइम्स इट्स नॉट कैश ओनली। ठीक है, इट्स ऑल्सो काइंड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। Okay, so what we were saying was individual donors are like our family. Individual donors will be with us and be with our organization through thick and thin. जो भी प्रॉब्लम होते हैं पहले इंडिविजुअल डोनर्स आते हैं। आपका इलाका में जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, आपका क्षेत्र में, आपका जोग्राफी में जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, सडनली बाढ़ आ गया, ठीक है, इंडिविजुअल डोनर्स आर द फर्स्ट पर्सन हु विल कॉल यू अप एंड से कि क्या आपको कुछ चाहिए, क्या मैं मैट्रेस लाओ, क्या मैं प्लास्टिक का शीट लाओ, क्या मैं खाना लाओ। ठीक है, सो दीज इंडिविजुअल डोनर्स आर गोइंग टू स्टे विथ यू बिकॉज दे फील फॉर योर प्रोजेक्ट, दे फील फॉर यू, दे फील फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सो इंडिविजुअल डोनर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे आर द फाउंडेशन डोनर्स फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। ऑफकोर्स द क्वेश्चन इज दैट इंडिविजुअल डोनर्स का बहुत कम पैसा रहते हैं, 1000 रुपया रहते हैं, 500 रुपया रहते हैं, 10,000 रहते हैं, वॉट एवर इट इज। ठीक है, बट लेट मी टेल यू वन थिंग दैट एवरी ड्रॉप काउंट्स। ठीक है, एवरी ड्रॉप काउंट्स, और मोर देन दैट इट इज द इनकरेजमेंट। ठीक है, जो इंडिविजुअल डोनर्स आपसे मिलके आपको 1-on-1 लेवल पे आपको जो इनकरेजमेंट देते हैं, आपका स्टाफ को जो इनकरेजमेंट देते हैं, वो लेके दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ इंडिविजुअल डोनर्स। ठीक है, another point is that
दे आर द वंस हु आर गोइंग टू बी देयर विथ यू, ठीक है। एंड एज ए सेड फ्लेक्सिबिलिटी है, इंडिविजुअल डोनर्स का डोनेशन जो है वो आप उसे पूछ सकते हैं कि भाई हाँ यहाँ पे क्या है, मुझे ये चाहिए, मुझे टेबल चाहिए, मेरे को चेयर चाहिए, मुझे कंप्यूटर चाहिए, मेरे को अलमारी चाहिए, कबर्ड चाहिए वगैरह, विच नॉर्मली इंस्टीट्यूशनल डोनर्स यानी कि जो CSR डोनर्स है या बाकी का जो डोनर्स है, दे मे नॉट गिव इट टू यू, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड, फ्लेक्सिबल डोनेशन है, उसका ज़्यादा अपने को रिपोर्टिंग वगैरह नहीं करना पड़ता है, ठीक है। सो फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल डोनर्स मेक अ लॉट ऑफ सेंस बिकॉज यू डोंट हैव टू रिपोर्ट टू मच, ठीक है। हाँ, यू मतलब थोड़ा बहुत उसका रिलेशनशिप मेंटेन करने, और जैसा मैंने पहला बोला था, इंडिविजुअल डोनर्स का साथ में हमेशा आप एक रिलेशनशिप मेंटेन करो। आपका यहाँ पे आपका संस्था में कुछ प्रोग्राम हो रहा है, कुछ इवेंट हो रहा है, उन लोग को बुला देना, उन लोग से रिबन कटवा देना, मतलब इनॉग्रेशन करा देना वगैरह वगैरह, एंड कीप देम हैप्पी। नाउ इन टर्म्स ऑफ टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डोनर्स, जैसा मैं आपको बोल रहा था, देयर आर 3-4 टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डोनर्स, ठीक है। एक तो है कि भाई जो आपको डायरेक्टली पैसा देते हैं, ठीक है, मे बी योर फ्रेंड्स, फैमिली एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दूसरा है जो आपको पैसा नहीं पर कुछ चीज़ देते हैं, यानी कि कुछ कंप्यूटर हो गया, अलमारी हो गया, बाकी का कुछ जो चीज़ चाहिए, लाइक वॉट एवर यू नीड, खाना हो गया, मतलब आपका बेनिफिशियरीज के लिए वगैरह वगैरह, ठीक है। और तीसरा इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ इंडिविजुअल डोनर्स है जो आपको कॉन्टैक्ट्स देते हैं, जो आपको लिंक्स देते हैं, वेल विशर्स बोलते हैं उसको हम लोग, ठीक है, जो आपको अलग अलग डोनर्स का या हाई नेटवर्क इंडिविजुअल से आपको लिंक्स देते हैं, ठीक है। सो दीज आर द 2-3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डोनर्स, ठीक है, एंड वी नीड टू कल्टिवेट दीज इंडिविजुअल डोनर्स, ठीक है। बहुत से बार ऐसा हो जाता है कि हम लोग को इंडिविजुअल डोनर्स या नया डोनर्स का ऊपर हम लोग को वी फील इट वेरी डिफिकल्ट टू कल्टिवेट देम। मेनी पीपल कम टू मी एंड से कि सर क्या है कि मैं इतना बिजी रहता हूँ पूरा दिन, ठीक है, अपना प्रोजेक्ट में कुछ काम होते रहते हैं, मेरा फील्ड में कुछ काम होते रहते हैं, कि इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू स्पेंड टाइम टू कल्टिवेट न्यू डोनर्स, और इवन स्पेंड टाइम टू जो भी मेरा प्रेजेंट डोनर्स है, ठीक है, या जो पास्ट डोनर्स है, या जो मेरा वेल विशर्स है, उसको हाय हेलो बोलने का, उसका साथ संपर्क में रहने का, ठीक है। मेरा ये कहना है कि हम लोग को एज अ डायरेक्टर ऑफ अ स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनाइजेशन वी नीड टू स्पेंड एटलीस्ट 1 hour a day, ठीक है, वी नीड टू स्पेंड एटलीस्ट 1 hour a day ऑन न्यू फंड रेजिंग। न्यू फंड रेजिंग का मतलब ये है कि जो एग्जिस्टिंग फंडर है, एक्टिव फंडर है, उसका बारे में नहीं बात करो, जो न्यू फंडर, यानी कि कैसा हाउ टू कल्टिवेट न्यू फंडिंग। हम लोग को एटलीस्ट एज अ डायरेक्टर, एज अ फाउंडर ऑफ अ माइक्रो ऑर्गेनाइजेशन वी हैव टू स्पेंड एटलीस्ट 1 hour a day, ठीक है, और न्यू फंड रेजिंग, और बाकी सब काम को आपको साइड में डालना है, 1 घंटा आपको स्पेंड करना है फंड रेजिंग पे। बिकॉज मेनी पीपल हैव कम बैक, मेनी डायरेक्टर्स फ्रॉम द ग्रुप हैव कम बैक टू मी एंड सेड कि भाई मैं समझ सकता हूँ आप जो बोल रहे हैं सही बात है, पर हम लोग को टाइम नहीं मिलता है। तो टाइम अपने को करना पड़ेगा, टाइम हम लोग को निकालना पड़ेगा, ठीक है, हम लोग को डे को बराबर शेड्यूल करके, ठीक है, एंड प्रायोरिटी देके द थिंग्स विच वी नीड टू prioritize, we have to prioritize, we have to spend at least 1 hour a day on new fundraising, on क्या बोलते हैं उसको, फार्मिंग, ठीक है, कल्टिवेटिंग न्यू फंडर्स, ठीक है, प्रिपेयरिंग लिस्ट, ठीक है, looking through the website, seeing which are the new funders, which are the funders which can give you some money, CSR, चाहे वो CSR होने दो, चाहे इंडिविजुअल होने दो, चाहे FCR होने दो, जो भी है, but spend at least 1 hour a day on new fundraising, that's very important, ठीक है, and you have to make time. ओके, टेकिंग इट फॉरवर्ड फ्रॉम ईयर, दूसरा एक आ जाता है कि यही 1 घंटा का जो बात करता हूँ मैं, बहुत से डायरेक्टर से बात करता हूँ कि आपको दिन में एटलीस्ट 1 घंटा आपका नया फंडर्स का ऊपर स्पेंड करना है, न्यू फंड रेजिंग अपॉर्चुनिटीज का ऊपर फंड रेज करना है, यानी कि जो जैसा कि इंडिविजुअल डोनर्स का लिस्ट बनाना, जैसा कि CSR का लिस्ट बनाना, जैसा कि FCRA का लिस्ट बनाना, और उन लोग को कॉल करना, ईमेल करना, न्यूज़लेटर बनाना वगैरह। न्यूज़लेटर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ फंड रेजिंग, क्यों क्या होता है कि चाहे वो आपको फंडिंग दे रहे हैं कि चाहे वो फंडिंग नहीं दे रहे हैं आपको, ठीक है, आप न्यूज़लेटर लगातार उसको बेचते रहेंगे तो क्या उसका दिमाग में रहेगा कि भाई हाँ ऐसा एक संस्था है जो अलाना फलाना काम कर रहे हैं और अलाना फलाना इलाका में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो शायद अभी उन लोग का यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगा, पर 3 साल बाद, 2 साल बाद में शायद अपॉर्चुनिटी रहेगा। शायद ऐसा भी हो सकता है जो एम्प्लॉई है वो संस्था का, ठीक है, वो फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन का, दैट पर्सन में लीव द जॉब एंड गो टू सम अदर प्लेस, ठीक है, और वहाँ पे आपका उन लोग जो फंडिंग कर रहा है, दिया क्राइटेरिया फंडिंग, ठीक है, विल फिट इनटू योर ऑर्गेनाइजेशन। तो न्यूज़लेटर बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग,
ठीक है। सो माय पॉइंट इज दैट आपको हमेशा एटलीस्ट रोज 1 घंटा आपको न्यू फंड रेजिंग कल्टिवेट करने में, ठीक है, उसको ग्रो करने में देना ही है। एंड दिस डजंट मीन दैट द ओल्ड फंडर्स और द फंडर्स विच आर ऑलरेडी देयर विद यू, ठीक है, दीज मीन्स एब्सोल्युटली न्यू फंडिंग। आपको देखना है कि हु आर द न्यू पीपल, जो इंडिविजुअल डोनर्स है उन लोग को हाई हेलो बोलने का, उन लोग को अपना न्यूज़लेटर भेजना है। जो पुराना आपका इंस्टीट्यूशनल डोनर्स है, आपका CSR डोनर्स है, उन लोग को हाई हेलो बोलने का, उन लोग को न्यूज़लेटर भेजना है। ये 1 घंटा आपको स्पेंड करना पड़ेगा। देख वी आर डायरेक्टर्स ऑफ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, वी आर डायरेक्टर्स ऑफ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस, वी आर फाउंडर्स ऑफ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस। हम लोग का पास पूरा फंड रेजिंग टीम नहीं है, ठीक है। जो हम लोग का पास है वो हम लोग का पास है, ज़्यादा करके हम लोग रहेंगे और हम लोग का 10, 15, 20 प्रोजेक्ट स्टाफ रहेगा, ठीक है। सो इन दिस टाइप ऑफ सिचुएशन फंड रेजिंग का जो ओनर्स है, जो भी आप बोलो, हम लोग का ऊपर ही आ रहा है, ठीक है। सो देयरफॉर वी हैव टू मेक टाइम फॉर फंड रेजिंग, ठीक है। बाकी का जो चीज़ें, तो आपका जो सेकंड इन कमांड है, आपका थर्ड इन कमांड है, उन लोग को डेलीगेट करो आप, ठीक है। बट स्पेंड एटलीस्ट 1 hour अ डे ऑन फंड रेजिंग, ठीक है, न्यू फंड रेजिंग, ऑन फार्मिंग न्यू फंड रेजिंग, ठीक है, ऑन कल्टिवेटिंग न्यू फंडर्स, ठीक है, on meeting your old funders, keeping relations with your old funders, ठीक है, through newsletter, through messages, through phone call, जो भी है, जो भी आपको करना है आप करो। और आपका ओल्ड फंडर्स और न्यू फंडर्स को दोनों भी आप पास में रखो, ठीक है, ताकि यहाँ से अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा एक कॉन्सेप्ट इसमें आ जाता है, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जो मैंने बात की है, काफ़ी डायरेक्टर लोग से बात किया था, तो उन लोग ने मुझे एक ये बोला था कि देख हम लोग तो न्यू फंडर्स का कुछ इशू नहीं है, पर इशू क्या हो जाता है कि बहुत से बार हम लोग को ना इमीडिएट अपॉर्चुनिटी आ रहा है वर्सेस लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी। मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। इसमें इमीडिएट अपॉर्चुनिटी मतलब क्या होता है कि आप काफ़ी साल से काम कर रहे फील्ड में, सडनली किसी ने, फंडर ने, या किसी एक व्यक्ति ने, या किसी एक संस्था ने, या एक ऑर्गेनाइजेशन कॉर्पोरेट ने आपको अप्रोच किया, और आपको अप्रोच करने का बाद में बोलते हैं कि मुझे कुछ फंड रेजिंग में सोच रहा हूँ कि आपको फंड रेज करना है। सो नॉर्मली क्या होता है ना, हम लोग उधर भाग जाते हैं। चलो ये टाटा ने मेरे को अप्रोच किया तो मैं टाटा का पीछे 15 दिन के लिए भागूंगा। उसका बाद में बिरला ने अप्रोच किया तो मैं बिरला का पीछे 15 दिन के लिए भागूंगा। उसका बाद अलाना फलाना ने अप्रोच किया तो मैं उसका पीछे भागूंगा। वो करना कि नहीं करना, मैनी डायरेक्टर्स आस्क मी दिस क्वेश्चन, शुड वी बी डूइंग इट और शुड वी नॉट बी डूइंग इट। देख आपको ना एक बैलेंस करना पड़ेगा। दीज आर इमीडिएट अपॉर्चुनिटीज विच आर कमिंग, दीज आर मतलब जो डोनर्स सामने से आ रहे हैं उन लोग को ना तो नहीं बोल सकते, लक्ष्मी को ना नहीं बोल सकते, ठीक है। मतलब आपको उसको बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। इन लोग का पीछे आप भागो, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, पर साथ ही साथ में आपको एक जो बोलते हैं ना, एक बेस भी तैयार करना है, ठीक है। जैसा, हाँ ठीक है, बिरला आ गया आज, आप या वेदांत आ गया, या क्या बोलते हो उसको, अडानी आ गया, तो उसका पीछे आप भागो, उसको ट्राई करो कि आपको मतलब यू ट्राई फॉर देयर फंडिंग, ठीक है, दैट यू डू। पर एट द सेम टाइम यू ऑल्सो इंश्योर कि भाई वो फंडिंग नहीं हुआ 15 दिन उसका पीछे भागने का बाद में, उन लोग का फील्ड विजिट होने का बाद में, ठीक है, उसका बाद में 2-3 महीना उन लोग का कुछ खबर नहीं है, ऐसा भी हो सकते। सो इन दीज सर्कमस्टेंसेज यू हैव टू हैव योर बेस वेरी स्ट्रांग, ठीक है। और बेस कैसा आपका स्ट्रांग रहेगा, बेस ऐसा स्ट्रांग रहेगा कि लगातार आप एक घंटा रोज न्यू फंड रेजिंग के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। आप लिस्ट बना देंगे कौन सा न्यू फंडर्स है, इंडिविजुअल डोनर्स, कौन सा न्यू फंडर CSR डोनर्स है, ठीक है। CSR को अप्लाई करेंगे आप, उसको प्रपोजल भेजेंगे, उसको आप न्यूज़लेटर भेजेंगे, ठीक है। उसका एनुअल रिपोर्ट आपका है तो आप पब्लिश कर रहे हैं तो एनुअल रिपोर्ट भेजो, ठीक है। लोग से बात करो, ठीक है। सो यू हैव टू बैलेंस बिटवीन इमीडिएट अपॉर्चुनिटीज जो आ रहा है एंड लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज, और ये बैलेंस आपको तय करना है कि कितना टाइम मुझे इमीडिएट अपॉर्चुनिटी पे स्पेंड करना है और कितना टाइम मेरे को लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी पे स्पेंड करना है। दिस इज समथिंग आई कैन नॉट एडवाइज यू ऑन, दिस इज समथिंग आपका सिचुएशन, आपका संस्था को देख के आपको स्पेंड करना पड़ेगा। पर इसमें एक कॉन्सेप्ट रहता है, जो इमीडिएट अपॉर्चुनिटी है ना, दैट इज गिव्स हाइट, ठीक है। वो हाइट का हिसाब से उसको आप कंपेयर करेंगे तो वो एक हाइट है आपका, ठीक है। और जो लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी है ना, वो बेस है, ठीक है, यानी कि वो जमीन है, ठीक है। तो आपको डिसाइड करना है कि आपका बिल्डिंग को कितना माला का करना है या आपको कितना जमीन चाहिए। देख आपका जमीन बढ़ जाएगा तो आपका गज, नंबर ऑफ एकर्स इफ यू इंक्रीज और नंबर ऑफ मीटर्स इफ यू इंक्रीज, यू कैन पुट 3-4 बिल्डिंग्स, आप 3-4 बिल्डिंग बांध सकते हैं, ठीक है, फ्यूचर में जाके।
और आपको एक ही बिल्डिंग के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है, तो वो शायद उसको मतलब मतलब वो 2 माला का बिल्डिंग को 4 माला या 5 माला बना सकते हैं। पर ये कोई राइट एंड रॉन्ग आंसर नहीं है, ये आपको डिसाइड करना है कि आप इमीडिएट अपॉर्चुनिटी का पीछे जाना वाला है कि आप लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी का पीछे जाना वाला है। पीछे तो दोनों का जाना है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप किसी एक को डिसाइड करो कि आप इसका पीछे ही जाएगा, नहीं। आपको लगा कि अपॉर्चुनिटी अच्छा है, फंडिंग का पोटेंशियल है, आपको पीछे जाना ही है, ठीक है। पर आप कितना टाइम आप इमीडिएट अपॉर्चुनिटी को एलोकेट करना वाला है और आपका लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी को एलोकेट करना वाला है, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। नॉर्मली क्या होता है कि ना हम लोग इमीडिएट अपॉर्चुनिटी का पीछे भागते हैं, क्यों? हम लोग को दिखाई देता है वो अपॉर्चुनिटी। इमीडिएट अपॉर्चुनिटी क्या है, कोई आके हम लोग को अप्रोच किया, हम लोग को दिखाई देते हैं वो अपॉर्चुनिटी, देयरफॉर वी गो फॉर इमीडिएट अपॉर्चुनिटी, ठीक है। लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी क्या रहता है, वो हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा है, हम लोग ईमेल कर रहे हैं, हम लोग न्यूज़लेटर भेज रहे हैं, कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो वी थिंक दैट अरे भाई इसमें कुछ अपॉर्चुनिटी है ही नहीं, ठीक है। बट बिलीव मी, इसमें भी अपॉर्चुनिटी है, खाली इतना है कि लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी में आपको रिजल्ट दिखाई नहीं दे रहा है। इमीडिएट अपॉर्चुनिटी में आपको दिखाई दे रहा है, आप किसी भी एक संस्था से मिल रहा है, आप किसी भी व्यक्ति से मिल रहा है, यू आर मीटिंग विद पीपल, यू आर डिस्कसिंग समथिंग, ठीक है, यू आर सीइंग सम रिटन थिंग समथिंग, दैट्स इमीडिएट अपॉर्चुनिटी आते हैं। सो नॉर्मली ह्यूमन टेंडेंसी यही है कि इमीडिएट अपॉर्चुनिटी का पीछे भागना, ठीक है, और लॉन्ग टर्म का पीछे नहीं करना। पर मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको डिसाइड करना पड़ेगा, आपको बैलेंस करना पड़ेगा बिटवीन इमीडिएट फंडिंग अपॉर्चुनिटी एंड लॉन्ग टर्म फंडिंग अपॉर्चुनिटी। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वाला टॉपिक है, इसका ऊपर आपको और कुछ गाइडेंस चाहिए तो डेफिनेटली मुझे कांटेक्ट करो, या जो एक बार यूट्यूब में डाला तो आप उसको मतलब कमेंट्स में भी डाल सकते हैं, उसके ऊपर हम लोग और भी डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। बिकॉज allocating time between immediate opportunity and long term opportunity greatly affects your time of spending 1 hour a day on new fundraising, ठीक है। न्यू फंड रेजिंग में जो हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है, allocating time on immediate opportunity or long term opportunity will immediately have a bearing on your spending 1 hour a day on fundraising. Okay, so coming back to immediate opportunity versus long term opportunity, as I said, it's a little complicated topic, थोड़ा complicated है और उसको थोड़ा और जानकारी चाहिए, you can reach out to me or we can have a session on immediate opportunity and long term opportunity, और हम लोग को कैसे इसको बैलेंस करना है। जैसा मैं बोल रहा था, इमीडिएट अपॉर्चुनिटी में क्या होता है, आपको दिख रहा है, आपको अपॉर्चुनिटी दिख रहा है, आप किसी से मिल रहे हैं, आप कोई पढ़ रहे हैं, कुछ चीज़ पढ़ रहे हैं। लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी क्या है, आप न्यूज़लेटर भेज रहे हैं, आप प्रपोजल भेज रहे हैं, आप आप कांटेक्ट करने का कोशिश कर रहे हैं, तो आपको दिख रहे हैं। तो नॉर्मली वी रन आफ्टर इमीडिएट अपॉर्चुनिटी, आई एम नॉट सेइंग दैट इज बैड, दैट इज ऑल्सो हैज टू बी डन, पर आपको बैलेंस करना पड़ेगा इमीडिएट अपॉर्चुनिटी और लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी का बारे में, ठीक है। ओके, विल गो टू नेक्स्ट टॉपिक। ओके, ये दूसरा एक चीज़ है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो भी आप कर रहे हैं ना, आप इंडिविजुअल डोनर्स का पीछे जा रहे हैं, आप इंस्टीट्यूशनल डोनर्स का पीछे जा रहे हैं, आप CSR का पीछे जा रहा है, आप FCRA का पीछे जा रहे हैं ना, आपको लिखना पड़ेगा, आपको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। बहुत से लोग ऐसा हमें बोलते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट करने का ज़रूरत नहीं है, हम लोग का दिमाग में सब रहता है। मैं मानता हूँ कि आपका दिमाग बहुत तेज है, मैं मानता हूँ, आई एम नॉट सेइंग नो टू दैट, बट क्या होता है ना, लिखने में भी एक दूसरा एक चीज़ होता है। देखिए, आपका दिमाग में ज़्यादा से ज़्यादा 30, 40, 50 इंडिविजुअल डोनर रहेगा या CSR डोनर रहेगा। आप जब भी लिखेंगे ना और आप बोलेंगे नहीं मेरे को 100 लिखना है ना, तो आप सोचते रहेंगे, अच्छा भाई मेरे ने 50 लिख दिया, मेरा 50 तो दिमाग में है, वो मैंने लिख दिया, और कितना है, तो आप किसी से पूछेंगे तो वो एक 100 का लिस्ट बन जाएगा आपका, ठीक है। सो इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर इंडिविजुअल डोनर्स, फॉर CSR डोनर्स इज टू राइट डाउन। फॉर एग्जाम्पल, अभी आज का जो टॉपिक है हम लोग का, आज का तो टॉपिक जो है हजार इंडिविजुअल डोनर्स का लिस्ट बनाना है, तो डेफिनेटली 1000 आपका दिमाग में नहीं रहेंगे कि 1000 इंडिविजुअल डोनर्स, शायद आपको मालूम रहेगा, आप थोड़ा सोचेंगे उसका बारे में तो ले सकते हैं आप। बट द इशू इज दैट इफ यू स्टार्ट राइटिंग डाउन, मे बी फर्स्ट टाइम पे आप जब भी लिखेंगे आप शायद 50 इंडिविजुअल डोनर्स का नाम लिखेंगे, उसका बाद आप थोड़ा और सोचेंगे तो नेक्स्ट डे पे आपको और 50 से और 60 हो जाएगा, मतलब 10 more will be added, the next day 10 more will be added and so on and so forth। उसका बाद में आप किसी और से भी पूछेंगे कि क्या भाई आप आप कोई मुझे रेकमेंड कर सकते हैं या कोई डोनर जो ये अपना इशू में इंटरेस्ट है, जो अपना संस्था में इंटरेस्ट है, एंड देन यू विल गेट मे बी 10 more from some other place also। Okay,
So important thing what we were saying is to write down, ठीक है. So whatever list you have to write it down so that वो list थोड़ा define होता है, redefine हो जाता है, ठीक है. ओके आप आपका दिमाग में रख के नहीं हो सकते, आप ज़्यादा से ज़्यादा 30, इनफैक्ट मोस्ट टू मोस्ट आई हैव सीन ऑर्गेनाइजेशंस और डायरेक्टर्स कैन रिकॉल 15 इंडिविजुअल डोनर्स और 15 कॉर्पोरेट डोनर्स, उसका ज़्यादा उन लोग का लिस्ट जाते नहीं. पर आपको 1000 का लिस्ट चाहिए इंडिविजुअल डोनर्स का, तो स्टार्ट राइटिंग इट डाउन एंड एवरी डे वर्क ऑन दैट लिस्ट. हाँ, और किसी से पूछ लेना कि भाई हाँ भाई आप तो मेरे को दे रहे हैं, पर सर कैन यू कनेक्ट मी टू सम मोर पीपल हु कैन गिव मी मनी, ठीक है. सो दैट इज हाउ यू विल गेट अ लिस्ट. ठीक, 1000 आपको एक झटका में नहीं मिलेगा आपको, ठीक है. 1000 आपको एक झटका में नहीं मिलेगा, आपको थोड़ा लिस्ट बनाना पड़ेगा. पहला आप 50 का बनाएंगा, उसके बाद आप 60 का बनाएंगा, उसके बाद 70 का बनाएंगा, उसके बाद किसी और से पूछेगा कि कैन यू गिव मी सम मोर लीड्स, कैन यू टेल मी सम अदर पर्सन वुड बी इंटरेस्टेड इन दिस कॉज इन माय ऑर्गेनाइजेशन. तो उसका तो वो आपको एक नाम देगा, 2 नाम देगा, 4 नाम देगा, वैसा और वैसा वैसा करते 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 ओवर अ पीरियड ऑफ 1 to 2 months और मे बी 3 months यू विल गेट अ लिस्ट ऑफ 1000 डोनर्स, ठीक है, जो हम लोगों ने शुरुआत में जो बोला था ना उसका बारे में, ठीक है. सो दिस इज अबाउट इंडिविजुअल डोनर्स, ठीक है. दिस इज अबाउट हैविंग अ लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी. तो मैं अभी थोड़ा समरी करूंगा, उसका पहले मैं एक पॉज. यस, सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, आज का जो टॉपिक था, आज का जो डिस्कशन का टॉपिक था, वीडियो का जो टॉपिक था, वो एक ये था कि ये 5 साल का फंड रेजिंग स्ट्रैटेजी. जैसा मैंने आपको बोला है, हर चीज़ जो भी काम कर रहे हैं हम लोग ना, हम लोग का एक लक्ष्य होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए. तो हम लोग को भी अपना संस्था के लिए एक 5 साल का फंड रेजिंग स्ट्रैटेजी, फंड रेजिंग गोल होना चाहिए. और वो फंड रेजिंग गोल को मीट करने के लिए या वो फंड रेजिंग टारगेट को मीट करने के लिए हम लोग को एक प्लान होना चाहिए. प्लान का मतलब दूसरा नाम है स्ट्रैटेजी, रणनीति होना चाहिए कि भाई हम लोग जो भी हम लोग ने बोला है कि 5 साल में हम लोग का संस्था को 1 करोड़, साल में 1 करोड़ उठाना है या फंड रेज करना है, तो उसका क्या प्लान होना चाहिए, उसका क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए. दिस शुड बी क्लियर इन योर माइंड, ठीक है. इन द 5 ईयर स्ट्रैटेजी आपका ये साल का है, स्पेशली द प्रेजेंट ईयर, ठीक है. इसका स्ट्रैटेजी आपको एकदम क्लियर होना चाहिए, इसका प्लान आपको एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है. इसमें आपको एक चीज़ है इंडिविजुअल डोनर्स, ठीक है. बहुत से बार हम लोग नज़रअंदाज करते हैं इंडिविजुअल डोनर्स, पर जैसा मैं आपको बोल रहा था, इंडिविजुअल डोनर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट डोनर्स फॉर अस, ठीक है. दे आर द फाउंडेशन ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन. और उन लोग का जो डोनेशन है बहुत फ्लेक्सिबल, हम लोग अलग अलग चीज़ में यूज़ कर सकते हैं. जहाँ पे बड़ा बड़ा डोनर फिट नहीं होते, ठीक है, वहाँ पे अपना इंडिविजुअल डोनर्स का जो फंडिंग है वो हम लोग को हेल्प करते हैं, ठीक है. जैसे आप एक दीवार को देखेंगे तो दीवार हैज़ मेनी ब्रिक्स और ब्रिक्स का बीच में सीमेंट है, ठीक है. ओके, खाली ब्रिक्स लगाने से, आपको खाली ईंट लगाने से आपको दीवार नहीं बनते. वो ईंट का बीच में आपको जो सीमेंट लगता है ना, वो आपका इंडिविजुअल डोनर्स है, ठीक है. सो दैट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल डोनर्स. एवरी ड्रॉप काउंट्स, एवरी ड्रॉप फॉर्म्स एन ओशन, ठीक है. हैव अ 5 year स्ट्रैटेजी. Another important thing, spend 1 hour a day. Spend 1 hour a day on cultivating new donors, ठीक है. चाहे वो CSR होने दो, चाहे FCRA होने दो, चाहे इंस्टीट्यूशन होने दो, चाहे HNI होने दो, ठीक है. स्पेंड 1 hour a day cultivating new donors. 1 घंटा आप बाकी सब काम को साइड में डालते हुए आप स्पेंड करो इंडिविजुअल डोनर, आप स्पेंड करो नया डोनर ढूंढने में, ठीक है. वो कौन सा भी डोनर होने दो, CSR होने दो, क्या बोलते उसको, FCRA होने दो, या कौन सा भी डोनर होने दो. तो स्पेंड 1 hour a day ऑन कल्टिवेटिंग न्यू डोनर्स. उसका बाद में दूसरा एक जो पॉइंट था मैंने जो दिया था कि ए इमीडिएट अपॉर्चुनिटी, और एक किधर गया उस स्लाइड, हाँ 1 मिनट, हाँ मेरा एक स्लाइड किधर घूम गया. हाँ, तो ये स्लाइड था कि स्पेंड बैलेंस योर टाइम बिटवीन इमीडिएट अपॉर्चुनिटी एंड लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी. ये थोड़ा डिफिकल्ट है कि इमीडिएट कोई आ गया, हम लोग को बोला कि हम लोग आपको 10,000 देना वाला है, ठीक है. इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको हाँ नहीं बोलो, उसका पीछे मतलब आप उससे बात नहीं करो, आप बात करो, पर ऑल्सो कीप योर आई ऑन द ऑर्गेनाइजेशन दैट कैन गिव यू 1 lakh rupees, ठीक है. तो लेट मी रिपीट इट अगेन. इमीडिएट डोनर, इमीडिएट अपॉर्चुनिटी, लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी पे आपको बैलेंस करना पड़ेगा, आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कितना टाइम मेरे को इमीडिएट अपॉर्चुनिटी पे स्पेंड करना है, कितना टाइम मेरे को लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी पे स्पेंड करना है. नॉर्मली इमीडिएट अपॉर्चुनिटी क्या करते हैं, इमीडिएट अपॉर्चुनिटी आपको बोलते हैं मैं अभी का अभी आपको 10,000 देना वाला है, वाइल लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी में यू मे हैव 10 lakh rupees, ठीक है. सो कीप दैट इन माइंड. ओके, विद दिस आई थिंक वी कैन एंड टुडेज सेशन.
ठीक है। इसका बारे में कुछ क्वेश्चन है, कुछ सवाल है, तो आप YouTube में है जो वहाँ पे आपका जो कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं, एंड आई ट्राई टू आंसर इट। इफ देयर इज अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस कमिंग ऑन वन टॉपिक, मे बी वी विल डू अ सेशन ऑन इट। ठीक है, यू कैन ऑल्सो सेंड मी डायरेक्ट SMS डायरेक्ट व्हाट्सअप ऑन माई नंबर। ठीक है, कमिंग बैक, जैसा मैं बोला था शुरुआत में कि जनता एक्सप्रेस क्या है उसका बारे में मैं थोड़ा बात करूंगा। जैसा मैं शुरुआत में बोला था कि जनता एक्सप्रेस एक ग्रुप है, एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस अक्रॉस इंडिया। इट्स अबाउट 200-250 ऑर्गेनाइजेशंस अक्रॉस इंडिया, और ज़्यादा से ज़्यादा ये ऑर्गेनाइजेशन छोटा संस्थाएं है। ऑल ऑर्गेनाइजेशंस आर बिलो 10 करोड़, एंड ऑल ऑर्गेनाइजेशंस इन जनता एक्सप्रेस, मोस्ट ऑर्गेनाइजेशंस इन जनता एक्सप्रेस आर बिलो 1 करोड़ बजट, एनुअल बजट। एंड व्हाट वी डू इज वी हेल्प स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, जो हम लोग माइक्रो ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। वी हेल्प माइक्रो ऑर्गेनाइजेशंस एंड स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस टू डेवलप सिस्टम्स and processes within their organization to raise funds. ठीक है, we want organizations to be independent as far as फंड रेजिंग गोज, ताकि उन लोग का खुद का प्रोसेस है, खुद का सिस्टम है, जहाँ पे उन लोग खुद ब खुद इंडिपेंडेंटली दे कैन रेज फंड्स। ठीक है, एंड डोंट नीड टू गो टू ईच पर्सन। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग हमेशा फंड ढूंढते हैं। हम लोग कैसे ढूंढते हैं? अरे एक कनेक्ट ढूंढते हैं, एक कॉन्टैक्ट ढूंढते हैं, वो ढूंढना चाहिए। साथ ही एक सिस्टमैटिक वे से भी फंड रेजिंग अप्रोच करना चाहिए। एक 5 ईयर प्लान करना चाहिए, फंड रेजिंग प्लान, दैट इज 5 ईयर फंड रेजिंग स्ट्रैटेजी करना चाहिए। ठीक है, एंड वी शुड अप्रोच फंड रेजिंग इन सिस्टमैटिक वे। नहीं तो हम लोग कभी भी वही जितना अपना बजट अभी है ना, उतना ही बजट में चलेंगे। ऑलवेज रिमेंबर कि आपका बजट 10% से बढ़ने रहे एवरी डे, एवरी ईयर ऑन ईयर। हर साल आपका बजट 10% से नहीं बढ़ रहे, मतलब आपका घट रहा है, आपका बढ़ने रहे, घट रहा है। योर बजट शुड एटलीस्ट इंक्रीज बाय मिनिमम ऑफ 15%। 15% वुड बी अ गुड अमाउंट to say that every year my budget, organization budget, NGO budget will increase by 15%. So thank you here. Please put in your comments in the section, in the account section. This is not a very official video, as you can say. हम लोग देखते कैसा करते, how will we do ahead. Thank you.